शिवानी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग बहुत जल्दी सेशन स्टार्ट करेंगे। ये स्टूडेंट, जब तक हम वेट कर रहे हैं सेशन स्टार्ट होने का, आप लोग चैट बॉक्स में अपना नाम और आपने कौन सी लोकेशन से ज्वाइन करा आप प्लीज लिख दीजिए। ऑल्दो अब तक तो हम इतने अच्छे से सबको जानते हैं कि हमें पता चल गया है आपके नाम से कि कौन सा बच्चा कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, बट आई विल स्टिल रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना नाम डाल दो। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल और आपको दिख सकता है कि आज के कौन से विनर्स हैं जो इस पिच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ऑल्सो वांट टू चेक कि आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप, वो लोग सब प्रेजेंट है। तो भारत लाइट्स, अगर आप यहाँ पर है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। राम प्रसाद, भारत लाइट से आपने ज्वाइन करा है अभी? ओके। इको ऑर्गेनिक, हेमंत, आप मेरे को सुन सकते हैं? यू आर प्रेजेंट। हिमांशु, आप हो यहाँ पे। हेमंत इज येट टू ज्वाइन। ओके। विकास, करनाल मैथ्स ट्यूशन, विकास, इफ यू आर देयर।
Present, ma'am. Zero restaurant. Thank you, Shahrukh. And Krishan and Vikas, I hope you are here with us. Great. So I'm going to again do a quick try run to see if our startups are ready and they are here with us. Bharat Lights, Ram. Okay, I request the Panchkula team to kindly coordinate with him and ensure that he joins. Then Hemant, Eco Organic, अगर आप हो तो please chat box में yes लिख दो. Okay, great, Hemant. Thank you. Vikas, Karnal, Home Tuition Center. Okay, Vineet sir, I'll just. So all our judges have also joined us now. Thank you so much, Maninder sir, Nitika ma'am, and Vineet sir to join this session and judge our students and encourage them. Thank you very much for taking out time. I have made you the co-host, so you can all unmute yourself. Thank you so much. Pleasure to be here. Thank you, sir. We'll be starting in another 5 minutes. I'm just waiting for more students to join. Thank you. Krishan and Vikas, Karnal Home Tuitions and Karvasra, are you with us? Okay, so I request the Karnal team to kindly coordinate for the same. Before we begin, I can see बहुत सारे students ने join करा है who haven't really, just shortlist नहीं हुए हैं. So to you all, I would like to say कि that it's all, the graph is always improving. आप लोग पहले से अब मैम के feedback लेके, sir के feedback लेके आपने बहुत कुछ सीखा, and you're definitely doing much better now. So I am sure there'll be various more competitions, and then you can always try for them. इस बार अगर आपने नहीं जीता तो please don't be disappointed and try again next time. And to the winners, congratulations. Keep working hard. Do not let the success get into your head, but please continue working hard. And जो भी आपको feedback मिलता है उसको absorb करिए, अपने startup में डालिए, and be ready for the next move. Okay, so let's see what does majority of our participants think कि आज का winner कौन होने वाला है. आप chat box में लिख के बता सकते हैं आपको किसका startup idea अभी तक सबसे अच्छा लगा है. Okay, so Anshuman says Hemant Bhai, Eco Organic India. Yes. Okay, let's see. Anyone else? किसका आपको लगता है कि आज सबसे interesting idea है जो Purnima also says Rishabh. So the entire Gurgaon center is with you, Hemant. All the best. Neha Yadav. Thank you, Neha. Anyone else? कोई और startup? All the best to all the startups. Clearly, the Gurgaon team is here in full attendance promoting Eco Organic. Good. I hear Krishna Karvasa. Good. 1932 says. Priyanka says Bharat Light. Good.
Right. So, Vineet sir, do we begin or shall I wait longer for few startups who are pitching to join? Thanks for asking, Smriti. A very good afternoon to everybody. To your question, I think we should begin because I'm sure our jury members also have limited time availability. So in interest of time, we should begin and others may join in time. Right, sir. So let's begin. Bharat Light, agar aap hai, so I will be. So before I begin, I would like to say that, yes, you are here. Great. हम alphabetical orders में मैं startups को बुलाऊंगी आपके founder name से, and if you remember, the format remains the same. 5 minutes. 5 minutes for you to pitch your startup, and the remaining 2 minutes for question and answer. Before I begin, I would like to ask the judges if they would want to say something to our startups. Nitika ma'am. Yeah, hi, Smriti. Good afternoon. Yeah, it's always good to be here. You know, I'm super excited to be listening to the final pitches and wish all 5 of you all the best. And you guys are already, you know, doing so well. You're all in it, fully committed. We are just here to, kind of support you more. So be confident and just give it your best shot. All the best, everyone. Thank you, Nitika ma'am. Maninder sir, would you like to share a few words? Well, when somebody asks me to share a few words, it seems as if, one of those old sessions where you are like the guest of honor and then old person coming on the stage and speaking for 15 minutes. So you're the guest of honor, Maninder. I'm just one of them. So I'm just, as Nitika said, I'm pretty excited because I've been hearing a lot of things from Vineet about the startups that have been coming up. So the whole idea is to just see where in their journey they are, and super excited. So yeah, best of luck, everybody. Thank you, sir. And as I would again like to say that, I would really like to thank our esteemed judges for joining our session. Maninder sir, who really encouraged us and induced some humor also on the session. He is the CEO and founder of Esperanza Innovation Private Limited. Nitika ma'am, we actually at SAC have no words for you. You have mentored our startups and you've taken so many sessions. Last session also, you were motivating them, you were sharing your feedback with them. So I hope everyone has incorporated that feedback. And aaj ke session mein wo hame dikhega. And of course, when she's not mentoring, her full-time job is she works as head of operations with Chandigarh Angel Networks. Thank you, ma'am, for taking out time. Our very own Vineet sir, who needs no introduction. He's the face of SAC, who motivates each and every startup, who mentors, everything that happens at SAC is because of him. So thank you, sir, for all of this. And on this note, I would like to, as I've already introduced the format, 5 minutes आपको मिलेंगे अपना pitch deck दिखाने के लिए, उसके बाद 2 minutes मिलेंगे Q&A के लिए. मैं time कर रही होंगी तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कब time up हो जाएगा. And now I would like to call Bharat Lights from Ram Prasad. आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए. यस मैम. ग्रेट. तो मैं अभी आपका पिच डेक खोल रही हूँ. ये आपको दिख रहा है बच्चे? हाँ जी मैम. हाँ जी, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. आप सभी का भारत लाइट में स्वागत है. नेक्स्ट स्लाइड मैम. चलिए हम भारत लाइट के बारे में हम जाने और भारत लाइट क्या है और किस तरह से हम लोग काम करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं. नेक्स्ट मैम. सुन पा रहे हैं मैम? बेसिकली मैं बताना चाहूंगा. हाँ जी मैम, सुन पा रहे हैं. बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि सुन पा रहे हैं मैम? जी राम, हम सुन पा रहे हैं. आप कंटिन्यू करो प्लीज गो अहेड. हाँ जी. बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा. मेरा नाम राम प्रसाद है. गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला का मैं स्टूडेंट हूँ और पंचकुला स्टार्टअप इंक्यूबेटर से हूँ. और मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और वहाँ के जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है.
तो मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली हम लोग ग्रामीण ब्रांड के रूप में हम काम करना चाह रहे हैं और ग्रामीण ब्रांड के रूप में हम लोग हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हम एलईडी लाइट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम 0.5 वॉट से लेकर के अभी हम 100 वॉट्स तक अपनी लाइट्स हम बना रहे हैं और अपनी सेवाएं हम दे रहे हैं। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम। राम, ये प्रॉब्लम्स तो वाली हम slide- लोगों ने जो प्रॉब्लम्स देखी, हाँ जी मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है आप। ओके, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू बेटा। मैं बताना चाहूंगा कि कोशिश की, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने गांव में क्या देखा कि ज्यादातर लोग क्या हैं वो 100 वॉट्स के बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं। अभी भी आप चले जाइए, राजस्थान के कुछ ऐसे गांव हैं और सिरसा के कुछ ऐसे गांव हैं जहां का मैं बेसिकली हूं, तो उस गांव में अभी भी लोग ज्यादातर अवेयर नहीं है। लोग दूसरी बल्ब्स का प्रयोग करते हैं। एक तरफ से हमें गवर्नमेंट और सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है और हम लोग भी स्वयं इस बात को जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है और हम लोग भी अवेयर हैं, यहाँ के लोग अवेयर हैं, लेकिन उन गाँव के लोग अवेयर नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है एलईडी लाइट्स के प्रति। उनके लिए वो 100 वाट का बल्ब ही सब कुछ है। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या थी कि वहाँ के जो लोग हैं क्यों नहीं वो खरीद पाते थे एलईडी लाइट्स, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव रहती थी, महंगी रहती थी, इसलिए वो लोग खरीद नहीं पा सकते थे। और तीसरी प्रॉब्लम हमने क्या वहां पे देखी, तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ सीजन का टाइम चलता है, जैसे गेहूं का टाइम चला या फिर किसी धान का है, फसल का जब टाइम होता है, जब फसल पकने वाली होती है, तो वहां पे घरों में क्या है इन्वर्टर्स लोग नहीं लगवा पाते हैं जो गरीब घर हैं। तो वहां के लिए भी हमने जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने उस प्रॉब्लम को हमने देखी। नेक्स्ट। तो उस प्रॉब्लम्स का हमने सॉल्यूशंस क्या दिया। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हमारी थी कि एक्सपेंसिव था वो प्रोडक्ट था, तो उसका हमने जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया कि हमने उसको क्या किया कि पॉकेट फ्रेंडली बनाया, उसको हमने बिल्कुल ही कम रेट्स पे लेके आए। अदर कंपनीज क्या है कि 120 या 130 रुपए का उनको प्रोवाइड कराती थी, वही चीज हम सेम क्वालिटी के अंदर उनको हम कम रेट्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहां 120 का दे रहे थे, हम उनको 70 से 80 रुपए के बीच में उन लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। पावर कट्स ज्यादा हो रही थी, तो उसके लिए हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमने इन्वर्टर बल्ब बनाया। अदर कंपनी भी बनाती है लेकिन वो ज्यादा महंगा होता है, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम इजिली जो हमारा ब्रांड है, जो हमारे प्रोडक्ट है, वो इजिली उनको खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो लोग क्या करते हैं कि रिप्लेसमेंट्स नहीं दे पाते। अगर बाई चांस कोई खराब हो जाता है और एक गरीब व्यक्ति कोई खरीदता है और खरीदने के बाद लगाता है, बाई चांस वो खराब हो जाता है, तो फिर वो दूसरा नया नहीं खरीद पाता। तो हमने क्या किया, उसको हम रिप्लेसमेंट को हमने क्विकली उनको देना शुरू कर दिया और वो हम बिल्कुल ही फास्ट उनको देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं उनकी। नेक्स्ट मैम। अगर हम बात करें तो अदर कंपनी से हम लोग डिफरेंट कैसे हैं, अलग कैसे हैं, तो पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि हम इजीली अफोर्डेबल हैं, यानी हमारे जो प्रोडक्ट है उनके मुकाबले काफी हम सस्ता है, जो कि आराम से व्यक्ति इसको खरीद सकता है। दूसरी पॉइंट क्या है हमारी कि हम क्विक सर्विस देते हैं। हम बिल्कुल ही, अगर किसी ने आज ऑर्डर किया तो हम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उस एरिया में उसको हम पहुंचा देते हैं। तीसरा क्या था कि इजिली रिप्लेसमेंट। हम लोगों का क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स उनको आती है रिप्लेसमेंट की, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बस एक कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाइए, हमें शेयर कीजिए, हम रिप्लेसमेंट आपको दे देंगे और जो रिप्लेसमेंट है वो हमारी कंपनी खुद ही आपसे उठा लेगी। तो हम रिप्लेसमेंट फास्टली देते हैं उनको। और हमारे प्रोडक्ट्स में हाई मार्जिन है। जो रिटेलर्स हैं और जो शॉपकीपर्स हैं वहाँ के जो छोटे छोटे हैं, वो हमसे खरीद करके उसके अंदर अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं और वो अच्छा मार्जिन कमाते हैं। तो इसलिए हम अदर कंपनियों से अलग हैं, डिफरेंट हैं। नेक्स्ट मैम। Your time is up. तो हम इसको आप हमने- क्विकली कंक्लूड कीजिए, जल्दी से Bharat, I'm कंक्लूड sorry to कीजिए। come in. Your time. हाँ,
मार्केट साइज की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 135 करोड़ इंडियन है, और हमारे जो ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है वो 90 करोड़ है, क्योंकि 75% जो लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं, इसलिए उन लोगों को हमने टारगेट किया है। नेक्स्ट मैम, हमारी जो मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी है वो है, हमारा जो मॉडल है वो B2B है। हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉप्स के ऊपर। ऑनलाइन हमारा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग अच्छा सेल कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी हम लोग लेते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का है, उसको हमने कंप्लीट किया है। एक स्कूल का प्रोजेक्ट था हमारे पास, उसको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट मैम, यूनिट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की, तो हमारी ग्रॉस मार्जिन जो रहता है हमारा पर यूनिट के ऊपर वो 60% का रहता है, और नेट मार्जिन अगर हम बात करें तो वो 35 से 35% तक रहता है इंडोर की लाइट्स के ऊपर। नेक्स्ट मैम, बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल हमारा, हमने 2020 में अपनी कंपनी शुरू की थी जून के अंदर, और फर्स्ट ईयर हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 8,22,000 के करीबन हमने किया। और जो सेकंड ईयर अभी जो चल रहा है हमारा, नवंबर से लेकर के फरवरी तक, अभी तक हमने 6,35,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है 18 फरवरी तक। नेक्स्ट मैम, तो टीम की हम अगर बात करें तो जो हमारी टीम है वो हमारी 15 लोगों की टीम है, लेकिन मेन हम 2 लोग इसको हैंडल करते हैं। मैं जितने ऑपरेशंस होते हैं बाहर के ऑपरेशंस, जैसे रॉ मटेरियल हो गया और लोगों के साथ मिलना हो गया, ऑर्डर जनरेट करने हो गए, वो सब मैं देखता हूँ। और मिस्टर राहुल भगत जी हैं, वो हमारे कंपनी के CEO हैं, और वो सोशल मीडिया का काम देखते हैं हमारी कंपनी के अंदर, और ऑनलाइन सेल्स कैसे जनरेट करनी है वो इस काम को देखते हैं। नेक्स्ट मैम, अभी हम हमारी कंपनी को ग्रो करने के लिए हमें लगभग 40 लाख की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे बहुत से ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग्स हैं। हम 40 लाख रुपए हमें चाहिए, जिसमें हम 10% अपनी मार्केटिंग पे खर्च करना चाहेंगे। सुन पा रहे मैम? हाँ जी, अब सुन पा रहे। ओके, हमें 40 लाख की आवश्यकता है, और क्योंकि हम 10% अपनी मार्केटिंग के लिए खर्च करना चाहते हैं, 15% हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे खर्च करना चाहते हैं, और 5% हम मशीनरी पे खर्च करना चाहते हैं, और 70% इन्वेंट्री के लिए हमें चाहिए। नेक्स्ट मैम, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल है bharatlight20@gmail.com, और हमारी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस पे भी आप विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you. I would request our panelists to kindly ask the questions. So I'll go first here. First of all, Ram, very nicely presented, very good, and the pitch had everything that one needs to know. And congratulations कि आप already revenue generate कर रहे हैं, which is very nice. Good to hear that. Thank you so much, sir. मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप कहते हैं कि आपकी इजी रिप्लेस लाइक क्विक रिप्लेसमेंट आप करते हैं, बिकॉज आप वैसे ही you're selling your products at a lower cost than the market, तो उसके अंदर आप जब रिप्लेसमेंट आप बोल रहे हैं कि यूजर बता तो देता है कि जी हाँ ये व्हाट्सएप पे दिखा दिया कि ऐसा है, आपको वो जो फॉल्टी प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करना एंड ऑल, उसकी कॉस्ट आपने जब स्केल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, अभी छोटे स्केल पे इंसान भागदौड़ थोड़ा इधर उधर जाके कर लेता है, पर वो कॉस्ट आपकी फैक्टर इन की है आपने रिप्लेसमेंट को पिकअप करना वापस, या उसको नया चीज देना, कि वो आप अपने वेंडर्स के थ्रू कर रहे हैं जो गाँव? सर इसमें हमारा क्या है कि जो हमारे वेंडर्स हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास किसी का ऑर्डर आ गया उस एरिया से, तो हम वहाँ के जो हमारे शॉपकीपर्स हैं जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उन्हीं को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट करने के लिए, वही लोग जाते हैं उनको रिप्लेसमेंट करते हैं सर। ओके, सो यू आप बेसिकली आपके वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही आप उनको स्टॉक देते हैं और वहीं से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
हाँ, वो वहीं से उठाते हैं। हम डायरेक्टली सिंगल पीस हम किसी को सेल आउट भी नहीं करते हैं और सिंगल पीस हम उठाते भी नहीं है, वो हमारा वेंडर ही जो है वहाँ का वही करता है। एंड व्हाट इज द, ये जो आपका जो इन्वर्टर वाला बल्ब आप बता रहे हैं कि आपने रिसर्च किया है, ये आप ऑलरेडी बेच रहे हैं इसको कि अभी इट्स स्टिल अंडर रिसर्च? नहीं सर, ये बेच रहे हैं, अदर कंपनीज भी बेच रही हैं, लेकिन उनके जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है, जो कि गांव के जो लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने उसी में थोड़ा रिसर्च किया और उसको हमने फिर उसको बनाना शुरू किया, तो वो हम कम रेंज में लोगों तक हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा तो अच्छा कितना मार्जिन है। उनका कितना है, आपका कितना है इस चीज में, इन्वर्टर वाले में? उनका अगर हम 1 ईयर की वारंटी में अगर उनका देखें तो वो लगभग 380 रुपए का मिलता है, मतलब कि होलसेल रेट में उसका 350 का है, तो आगे कस्टमर तक 380 तक उनको मिलते हैं। और जो हमारा है वो हम 210 रुपए का हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। That's pretty good. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Nitika ma'am, Vineet sir, I request you to ask the questions. So राम, a very good presentation, और मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। एंड बस मेरे को ये है, नाउ दैट आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो where you are making कुछ some sort of revenue, so how do you plan to scale it? अब स्केल करने के लिए जैसे आप 40 lakhs फंडिंग मांग रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको मिल जाता है तो आपका इमीडिएट सेल्स प्लान क्या है? मैम, अगर मुझे 40 लाख मिल जाते हैं तो अभी मेरा बेसिकली क्या है कि अभी मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने मार्केट में जैसे ही उतरे तो हमें बड़े कस्टमर्स हमें मिले जो कि 1000 पीसीज 10,000 पीसीज खरीदने वाले लोग हैं। तो वो लोग अभी उन तक हमारा सैंपल जा चुका है और उनको प्रोडक्ट्स पसंद है, लेकिन वही है कि वो हमें ऑर्डर्स दे रहे हैं। जैसे उन्होंने 500 पीस का ऑर्डर दिया तो उनको हम 300 पीस ही दे पा रहे हैं अभी। तो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मतलब 10,000 लगभग 3,000 पीसेस हमारे हैं, वो पेंडिंग पड़े हैं, उनको हम देने के लिए, हमें मतलब कि हमारे वेंडर्स हैं। तो हम कुछ उस पर खर्च करना चाहते हैं, जैसे मैंने बीच में भी बताया था कि हम 5% मशीनरीज पे खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि 5% मशीनरीज, कुछ एक मशीनरीज हमें और चाहिए काम को बढ़ाने के लिए। और हम ह्यूमन लेना चाहते हैं, लोगों को हम कंपनी के अंदर लाना चाहते हैं और उनको हम काम देना चाहते हैं, सेल्स को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो मेन फोकस हमारा सेल्स पे है। तो अभी हम जो सेल्स कर पा रहे हैं ओनली ऑनलाइन कर पा रहे हैं, ओनली फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, उसी से हम इतनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम ऑफलाइन पे हम काम करना चाहते हैं। ऑफलाइन के लिए हमें सेल्स मैनेजर चाहिए, तो उन पे हम खर्च करना चाहते हैं। ठीक है राम, सो आई थिंक आपको क्लैरिटी है, आपको दो चीजों पे काम करने की जरूरत है। एक, आपको अपना टीम स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है, और दूसरा आपको स्केलेबिलिटी इंक्रीज करने की जरूरत है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको बढ़ाने की जरूरत है। अदर देन दैट, ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग वेल। Thank you, Nitika ma'am. Vineet sir, I Thank request you so much, to ma'am. ask some questions. Thank you, Smriti. I think what I wanted to know broadly, I've heard through my co-panelists. So in interest of time, I'll avoid asking any questions as of now. Thank you. Thank you very much, sir. So moving on, our next startup is Eco Organic India. I request Hemant to kindly unmute himself. Hemant? Hello, ma'am. Hello, Hemant. So I'll just be sharing the screen. Sure, I ma'am. hope my screen is visible. Yeah, ma'am, it's visible. Okay, so Hemant, I'm starting the timer. All the best. Hello, everyone. Hope you all are doing good. This is Hemant, founder of Eco Organic India. Second slide, ma'am. So basically, Eco Organic India जैसे कि साउंड करता है इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक इंडिया, सेम हमारा कोर बिजनेस है कि हम reducing plastic from one's daily life by providing best sustainable alternative to plastic products. जो भी एक ह्यूमन डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज करता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारा एम है कि उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को हटा सके और इस तरह के प्लास्टिक को हटा सके जो कि नॉन रिसाइक्लेबल होता है। सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब हमें क्या प्रॉब्लम्स ऐसी दिखाई दी? बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखाई दी वो थी सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही है क्योंकि ये काफी चीप और काफी वर्सेटाइली यूज होने शुरू हो चुका है। बट इसका एट द एंड उसको डिस्पोज करना काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि लैंडफिल्स भरते जा रहे हैं और उसको रिसाइकल करना या उसको डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्मॉल चंक्स होते हैं और काफी
रिसाइक्लेबल नहीं होता है। सेकंड जो हमें लगी प्रॉब्लम हमें लगी वो ये थी कि जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है काफी हाई कॉस्ट पर आते हैं और जनरली लोगों को एक्सेसिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इको ऑर्गेनिक इंडिया एक मार्केट प्लेस बना रहा है जहां पे सभी तरह के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। एक ह्यूमन की लाइफ में वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करता है, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको बेस्ट से बेस्ट सभी ऐसे प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके जो कि प्लास्टिक फ्री हो। इसी के लिए हम अपनी खुद की सेल्फ ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, साथ साथ कॉर्पोरेट्स को ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे वो अपने आप को सस्टेनेबल बना सकते हैं और अपने प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना जो कि हर तरह के प्लास्टिक अल्टरनेटिव दे सके, हर तरह के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके। हमारा मिशन है कि हम एक ऐसा हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्लास्टिक के को झेलना ना पड़े, प्लास्टिक के से होने वाली समस्याओं को झेलना ना पड़े। सेकंड मैम। अब मार्केट क्या है? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि 75% मिलेनियल एंड 63% जेनजी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। कंज्यूमर्स अब ये चेक कर रहे हैं कि क्या कार्बन फुटप्रिंट्स वो दे रहा है जो प्रोडक्ट्स वो बाय कर रहे हैं। एंड एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पता चला कि 77% लोग जो है वो एनवायरनमेंट को लेके इतना रिस्पॉन्सिबल है कि उनको पैकेजिंग लाइक फूड की पैकेजिंग क्या आ रही है या फिर वो जो भी डेली में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग जो आ रही है वो किस मटेरियल से बन रही है, क्योंकि एट द एंड प्रोडक्ट फिर भी यूज हो जाता है बट पैकेजिंग काफी डैमेज करती है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हर चीज का सोल्यूशन दे, फ्रॉम पैकेजिंग से लेके प्रोडक्ट्स तक का। सेकंड स्लाइड। अब इसका मार्केट साइज क्या है? अगर हम मार्केट की बात करें तो लास्ट 5 to 7 ईयर में इको फ्रेंडली इंडस्ट्री 73% की ग्रोथ से बढ़ रही है। 86% ऑफ इंडियन चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें, बट 44% ही कहीं ना कहीं बाय करते हैं। बट स्टिल अगर हम इंडिया मार्केट के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ा नंबर है और आने वाले टाइम में 2030 तक ये मार्केट 21.9% के रेट से बढ़ने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है? करंटली हमारे प्रोडक्ट्स है नीमकॉम, बैम्बू ब्रश, एक वाइड वैरायटी की प्लांटेबल स्टेशनरी, इसमें वैरायटी ऑफ किट्स आती है और सोलो मटेरियल्स आते हैं। एंड फोर्थ इज सस्टेनेबल किट्स। हम इस तरह के किट्स बना रहे हैं जो कि आप गिफ्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट के लिए यूज कर सकते हैं या पर्सनल बेनिफिट्स हर तरह के यूज कर सकते हैं। हमारा बिजनेस मॉडल करंटली दो तरह से वर्क कर रहा है। एक हमारा ई कॉमर्स जिसमें हम पैन इंडिया डिलीवरी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, हर तरह के प्रोडक्ट को हर तरह के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा एवरेज मार्जिन 80% तक आ जाता है। B2B जिसमें हम कॉर्पोरेट्स को गिफ्टिंग के लिए HR ज्वाइनिंग किट एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए पिच कर रहे हैं। साथ साथ हम अभी एक सस्टेनेबल होटल एमिनिटी किट्स में भी काम कर रहे हैं, बिकॉज होटल एमिनिटी किट एक ऐसा रेंज है जो कि वन टाइम यूज होती है और बहुत ज्यादा प्लास्टिक जनरेट करती है। तो इसमें जो हमारा एवरेज मार्जिन है वो 10 से 15% का है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है? नीमकॉम जिसका ग्रॉस मार्जिन 76% है, बैम्बू ब्रश जिसका ग्रॉस मार्जिन 60% है और प्लांटेबल किट्स जिसका ग्रॉस मार्जिन 54% है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब तक का हमारा ट्रैक्शन 2 लाख के करीब है और हम ऑलमोस्ट एवरी मंथ 50K के अराउंड की सेल्स हो रही है। ड्यू टू कोविड थोड़ा सा सिनेरियो डाउन आया था, बट अगर हम एवरेज देखें तो हमारी सेल्स काफी सही चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। Hemant, your time is also up, so I request you to end it fast. श्योर मैम, श्योर। सो हियर आर द बेसिकली व्हाट आवर क्लाइंट सेज कि उनको हमारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे। आप पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द कॉम्ब इज स्टर्डी एंड स्मेल्स ग्रेट. I have used it a couple of times and I love how it make my otherwise unruly hair so soft. I am happy with the purchase. So basically हमारे जो buyers हैं उनको काफी पसंद आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये ना सिर्फ इको फ्रेंडली है बट पर्सनल केयर के बेसिस पे देखा जाए तो काफी हेल्पफुल है उनके। हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है? हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं बेयर नेसेसिटी, बीको, सस्टेन कार्ड, एडिशन, इको सत्व फॉर अर्थ सेक। अभी हम अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो सभी अपने अपने लेवल पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में अभी तक डोमिनेंस नहीं है। तो हमारा काफी अच्छा स्कोप है कि हम भी इस मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब तक हमारे 4 कॉर्पोरेट क्लाइंट रहे हैं, जिसमें एपवर्क्स, सैक्स, नेटमार्ट और VXL है।
रिसेंटली जो हमारी स्टार्टअप के लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिशिंग थी, ये उसके पिक्चर है. Here is our team. Me, founder. Basically, I handle the marketing part. My co-founder Karan, he handles the operation and procurement of products, and co-founder Himanshu, he handles the logistic and how the product gonna deliver to the end user. Thank you so much. You can contact us, our contacts, or you can mail us at info@ecoorganicindia.com. Thank you so much. Thank you, Hemant. I request our panelists to kindly ask Hemant few questions. Manin sir, would you like to go first? So thanks, Hemant. One, I must say that the presentation was very nicely done, built in the sense, Thank you because so much, sir. just in the morning I was talking to somebody, and you know, there's a massive challenge of people just not knowing how to just present their work, you know. So Yes. that's a nice thing, and especially when you're in products that are about, like, you know, giving the user the feel of, you know, it should look Yes. nice, it should feel nice. So that's nice that you are on the right track with that. What right now you've listed these products in your mind, you know, for the future, what have you planned? Like, what kind of products are you looking at, where, you know, something which might make you stand out of the other competitors that you've mentioned? सर बेसिकली अभी जो हमने देखा है ना कंपेटिटर्स में, कि एक ना काफी वैरायटी नहीं है प्रोडक्ट्स में. काफी मार्केट में सिर्फ 2 से 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर लोग फोकस्ड हैं. सो हमारा एम है कि हम एक बार अगर हमारे जैसे ही हमारी थोड़ी सा ब्रांड की वैल्यू बन जाती है, या लोग अवेयर हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ, उसके बाद हम ऐसी चीजें उनको प्रोवाइड करें जो काफी आउट ऑफ द वे हम उनको दे सकते हैं. हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं, बट अभी उन पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा. बट हम इस तरह की चीजें उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जो अभी तक मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल भी नहीं है. Yeah, I mean, that was my question, that how like, you know, just finding, because let's say if I've bought the brush or the comb, right? Yes, sir. I'm sure these are sturdy and strong products. Yes, sir. How, like, how will you sell me something else again during the year? I mean, 6-8 महीने साल तक तो चली जाएगी, or maybe less, I don't know. But how would you, like, and I'm happy with your product, so how would you go back to me and say, listen, I have something else for you as well, which you can again buy during the year, you know? That's what I'm trying to say, sir, कि अभी हम चाह रहे हैं कि एक बार प्रोडक्ट्स ऐसे, क्योंकि बेसिकली दिक्कत क्या आती है कि लोग अपनी हैबिट एकदम से चेंज नहीं करना चाहते, और किसी भी अननोन ब्रांड के साथ एकदम से जुड़ना नहीं चाहते. जैसे ही वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो काफी उनके लिए फेमिलियर हैं, जैसे ब्रश या कॉम, उनके साथ फेमिलियर होते हैं, तो हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे न्यू प्रोडक्ट्स. सिंस वो हमारे थोड़ा ब्रांड के साथ फेमिलियर होंगे, तो इजीली हम उनको टारगेट कर पाएंगे. Sure. Yeah. No, that's it. You're on the right track, as far as whatever I can see, and looks good. Thank you so much. Thank you. Maninder, you should become their corporate client, I guess. You know what? I'll deliver a few of their products to your office. Yeah. I'm waiting since the last Diwali. Yeah. No, I'll come soon, buddy. I'll come soon. And a follow-on question, Hemant, would be a very quick one, but जल्दी से बता दो कि आपकी go to market strategy क्या है? So basically, sir, हम अभी जो प्लान कर रहे हैं वो ये कि ऑनलाइन मार्केट में तो हम एंटर कर ही रहे हैं थ्रू Amazon और फ्लिपकार्ट या अपनी पर्सनल ई-कॉमर्स से. बट हमने एक चीज देखी है कि काफी हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग जनरली शॉप्स पर जाके बाय करते हैं. तो हम प्लान कर रहे हैं कि लोकल मार्केट को भी हम स्लोली टारगेट करना स्टार्ट कर दें, जो सुपरमार्ट्स हैं इन सब में. Got it. Jessica, any questions? Yeah, just one quick sorry. Yeah, just one quick suggestion, Hemant. मैंने पहले भी आपको बोला था कि it's the era of sustainability. हम लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पे इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है? Everywhere we are talking about it, और हम लोग सब लोग, like, as you know, everybody, every organization, all the people, they are promoting this. तो ये आपका टाइम है अपनी स्टोरी बिल्ड करने का. और मैं बार बार बोल रही हूँ कि वेदर यू आर सेलिंग इट ऑफलाइन, ऑनलाइन, डजंट मैटर, लेकिन आपकी स्टोरी
बिल्ड होना इस ब्रांड के अराउंड बहुत जरूरी है, और उसको अच्छे से आपको अपना सोशल मीडिया चैनल्स को यूज करके उसको प्रमोट करना शुरू करना चाहिए। बिकॉज एक बार आपकी स्टोरी पहुंच गई इन द सही डायरेक्शन, फिर आपको स्केलेबिलिटी में या आगे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सामने से ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, ये लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे फॉर योर ओन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टोरी बिल्डिंग पे फोकस करो, कंटेंट पे फोकस करो, क्योंकि आप ऑलरेडी उस सेगमेंट में घुस चुके हो एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। सबसे अच्छी बात ये है। तो आप इसको स्टोरी बिल्डिंग पे काम करो, आई एम श्योर यू विल डू रियली वेल, एंड दिस इज द टाइम। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा उस चीज का, राइट? Sure, ma'am. We'll work on that. ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you, panelists. Thank you, Hemant. So our next startup is Karnal Home Tuitions. I believe Vikas is here from Karnal Home Tuitions. विकास, आप पार्टिसिपेंट्स में आपने किसी और नाम से ज्वाइन करा है तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। Okay, right. So let's move on to the next one. Krishan, आप हैं? I just got a message. Smriti ma'am, Vikas is coming. Okay, Muskan, great. So Muskan, do you want us to wait for him or shall we move on to the next one first? I think let's move on to Krishan and then we can take Vikas to the next one. Krishan, आप एक बार please अपने आप को unmute कर लीजिए. Yes, ma'am. Okay, great. Just give me 1 minute. I'll open your presentation and then share this. Ma'am, मैं खुद present कर लूँगा, ma'am. Second ID से allow कर दो Krishan. Okay. राइट, मैंने आपको को होस्ट कर दिया, प्लीज प्रेजेंट कर दीजिए, अपनी एक बार खोल लीजिए। इसमें करो मैम, वाला रुको, सेकंड आईडी से करो मैम, जो सिस्टम में चल रही है। आप उसका नाम बता दीजिए ताकि मैं सेकंड आईडी को फिर कृष्ण से ही है मैम, सेम। ओके, ठीक है, ट्राई करिए। इसमें हो गया। बेटा स्क्रीन पे अभी विजिबल नहीं है। वेट अ सेकंड मैम। हाँ जी, विजुअल मैम स्क्रीन। हाँ जी विजिबल है। मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, आप शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे स्टार्टअप का नाम है फर्स्ट स्टेप, जो कड़वासा ट्रेडिंग कंपनी जो मेरी कंपनी है उसके अंडर आता है। सो हमारा प्रोडक्ट का मेन मोटिव था एनिमल्स के अराउंड सराउंडिंग थी हमारी। सो एनिमल कंप्लेन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो बात नहीं कर पाते हैं। बेसिकली अगर वो बात कर पाते तो कंप्लेन कर देते हैं किसके रिगार्डिंग? जो कॉटन सीड केक्स उन्हें दिए जाते हैं। कॉटन सीड केक्स मतलब जो खल बिनोले, जो देसी भाषा में बोला जाए तो खल वगैरह, उनको जो फीड था उनका, जो हम जानवरों को मार्केट से परचेज करके उनको देते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स है उनमें? बेसिकली उन कॉटन सीड केक्स में प्रॉब्लम है कि उनके अंदर क्वालिटी, जो क्वालिटी एनिमल्स को चाहिए वो क्वालिटी उन्हें नहीं दी जाती है। उनकी क्वालिटी में मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग का मेन रीजन होता है कि उसके अंदर फ्लेवर मिक्स किया जाता है, टेस्टर मिक्स किया जाता है, इवन वो मैंने देखा है कार्डबोर्ड तक मिक्स किए जाते हैं उसमें, सो दैट वो उस एनिमल को टेस्टी लगे और एनिमल उसको ज्यादा क्वांटिटी मांगे और उनकी सेल्स बढ़े। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था कि ये चीज एनिमल की हेल्थ को इफेक्ट कर पा रही थी। उनकी जो मिल्क की अमाउंट थी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, एनिमल्स इल हो पा रहे थे, उनकी लाइफ स्पैन, एनिमल की एक लाइफ स्पैन होती है वो भी प्रॉब्लम हो पा रही थी। मेनली एनिमल्स प्रेगनेंसी बियर करने में भी ये चीज प्रॉब्लम्स कर पा रही है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू था। अगर एनिमल्स रखा जाता है, इसे इन्हीं चीजों के लिए रखा जाता है एनिमल, और ये चीजें इन्हीं को ही इफेक्ट कर पा रही थी। सो इसके लिए इसका सोल्यूशन था कि जो भी प्रोडक्ट उनको दिया जाए वो हेल्दी होना चाहिए, वो प्रोडक्ट प्योर होना चाहिए। स्क्रीन दिख रही है मैम मेरी? हाँ जी बेटा दिख रही, अब बंद हो गई है, पहले दिख रही थी। कृष्ण, आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी।
ओके हाँ जी, अब दिख रही है। सो इसके लिए हमने इसका सॉल्यूशन निकाला और उसके लिए हमने उसमें इंग्रेडिएंट्स, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स का तो कोई बड़ा इशू नहीं था, व्हीट है, बाजरा है, कॉर्न है, लेग्यूम्स है, ये जनरली फार्मर के घर में भी अवेलेबल होते हैं। सो मेन पॉइंट वाज द प्रोटीन एंड फैट। फैट के लिए जो कॉटन सीड केक्स है वो यूज किए जा रहे थे, दैट वाज ए गुड आइडिया। लेकिन प्रोटीन के लिए क्या, प्रोटीन एक हमारी बॉडी का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जो हमारी मसल्स को टूटने के बाद उनको ज्वाइन करने में इनको हेल्प कर पाता है, लेकिन उसके लिए उन कार्डबोर्ड्स के बने हुए सीड केक्स में कुछ नहीं डाला जा रहा था। इसके लिए हमने इसके अंदर, एक बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से हूं मैं, तो मैंने इसमें सिंगल सेल प्रोटीन को आइडिया ट्राई किया एंड वो कुछ हद तक कामयाब भी हो पाया है। सिंगल सेल प्रोटीन के अलावा इसमें अंदर सोयाबीन्स, पल्सेस और सनफ्लावर सीड्स भी हमने इसके अंदर ऐड किए ताकि वो उसके कंटेंट को बढ़ा पाए। नेक्स्ट वॉज अब कि हमारे इसका मार्केट साइज क्या है। करंटली हम लोग, जब हम मेरा पहली बार स्टार्टअप किया था मैंने, जो लास्ट ईयर था, लॉकडाउन था इवन दो, फिर भी हमने इसका एक अच्छा मार्केट प्राइस बना लिया है। अभी करंटली हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में था। लेकिन सार्क इंडिया की जब इसमें मैं कॉन्टेक्ट में आया, उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत गाइड किया कि कहाँ कहाँ मेरे को करना चाहिए। उसके बाद हमने जो मेन टारगेट उस टाइम किए थे, दैट वाज हमारी गौशाला थी, वेटनरी हॉस्पिटल थे, डेयरी फार्म्स थे, जो प्राइमरी टारगेट्स थे। अब आता है कि वो लोग हमें सिलेक्ट क्यों कर पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो प्रोडक्ट था वो बेसिक उनका क्वालिटी था हमारा, कि हम क्वालिटी देंगे। रेगुलर चेकिंग हो रही थी क्वालिटी की, ये नहीं कि एक बार उसको सेट कर दिया उसके बाद क्वालिटी वही रखे जा रहे थे, हम टाइम टू टाइम उसको चेक कर रहे थे। थर्ड वाज द मेन मोटिव, दैट वाज कैटल ओरिएंटेड फीड। जो हम उनको फीड दे पा रहे थे वो सिर्फ कैटल ओरिएंटेड थी। अगर कोई कैटल ऐसा है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो उसके लिए फैट फ्री या फिर अगर कोई प्रोटीन फ्री चाहिए तो उसको प्रोटीन फ्री जो फूड था उसको दिया जा रहा था। नेक्स्ट ऑफ हमारा सोर्स ऑफ मनी क्या है। हमारा सोर्स ऑफ मनी करंटली हम कैटल ओनर, जो बड़े लेवल के कैटल ओनर उनके साथ भी हैं एंड रिटेलर के साथ भी हैं। रिटेलर हमें छोटे कैटल ओनर के साथ कनेक्ट करते हैं एंड डायरेक्टली जो बड़े कैटल ओनर हैं उनके साथ हम करंटली एक्चुअल कनेक्ट में हैं। हमारे कंपटीशन में कौन कौन है। कंपटीशन में हमारे वैसे देखें तो सारे जो सीड कंपनीज हैं, सीड केक बनाती हैं, वो सारी फैक्ट्रीज हैं। लेकिन अगर आप बात करो क्वालिटी की, तो वो कोई भी हमारे कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि अगर एक कस्टमर हमारी चीज एक बार परचेज करता है, ट्राई करता है, तो बेशक वो उसके लिए कॉस्टली आइटम हो, लेकिन स्टिल वो उस चीज को प्रेफर कर पाता है। अगर वो चीज 2000 दे के वो अपने जानवर को नुकसान कर रहा है, तो वहां पे 2500 देने में उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं लगती है। हमारी हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने ये चीज बनाई थी सिर्फ हमारे घर के यूज के लिए। देन एक ये हमने पड़ोसी पर ट्राई की थी, पड़ोसी लोगों ने बहुत अच्छा फिर हमें आइडिया दिया था कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। देन हमने इसको एक बिजनेस में स्टार्ट किया एंड इसको हमने मार्केट में लॉन्च किया। इसको बनाने के लिए हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। एक्सपेंसेस में हमारे रॉ मटेरियल, हमारी मार्केटिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स का मेंटेनेंस, लेबर वर्क, ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा का बिल। सो मेरी एक्सपेक्टेड अमाउंट यहाँ पे इससे है 5 लाख रुपए, जिसका हम 40% हम डायरेक्टली डालेंगे मार्केटिंग में और 40% डालेंगे ट्रांसपोर्ट में, ताकि जो परचेज कर रहा है उसको ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस है उसमें भी वो देखे कि हाँ ये कन्वीनियंट है। नेक्स्ट 20% की हम पैकिंग के अंदर एक्स्ट्रा डालेंगे, ताकि पैकेजिंग में उसको एक क्वालिटी मिले और वो एक लंबे टाइम तक उसकी पैकेजिंग चल पाए। थर्ड हमारा जो कंपोनेंट होगा, फोर्थ जो पार्ट होगा, दैट इज सैंपल्स। हम इसको थोड़े सैंपल को बढ़ाएंगे, सैंपलिंग देना एक्स्ट्रा करेंगे, सो दैट लोग उसको ट्राई करें एंड देन दे कम्स टू अस। दिस इज आवर लास्ट साल से हमारा जो क्वार्टर के वो नंबर्स हैं, दैट इज स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केटिंग और कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे एक भी कस्टमर नहीं था। सेकंड क्वार्टर में धीरे धीरे वो बढ़े एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो कि धीरे धीरे मार्केटिंग, हम लास्ट टाइम के बाद हमने मार्केटिंग पे मेन फोकस रखा एंड हमारी टीम, दिस इज आवर टीम। सो टीम में मैं हूँ ओनर, माय फादर साहब है जी देवीलाल, को फाउंडर एंड अकाउंट मैनेज करते हैं हमारे ललित कुमार। क्वालिटी चेकिंग के लिए गुरमंत है जो टाइम टू टाइम क्वालिटी को चेकिंग करते हैं एंड प्रदीप एंड अमित आर फॉर दी मार्केटिंग, ये लोग मार्केटिंग को मैनेज कर पाते हैं। थैंक यू मैम, दैट्स इट। थैंक यू कृष्ण। आप प्लीज अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पैनलिस्ट टू काइंडली आस्क फ्यू क्वेश्चंस। I'll go first this time. यस सर। कृष्ण, मेरा ये मानना है कि यार हिसार के एक छोटे से गांव में बैठे हुए अगर आप ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसी बिजनेस की लैंग्वेज बोल पा रहे हो ना यार, तो ये हमारे लिए बहुत एम्पावरिंग है। क्योंकि जो जो इम्पैक्ट, मतलब जो स्टार्टअप्स करने का जो आइडिया है या उसके अंदर घुस के बिजनेस चलाने का, उसको स्केल करने का जो आइडिया है ना, वो आपके जैसे रूरल एंटरप्रेन्योर्स ही एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे।
मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू और ये मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, बहुत एम्पावरिंग ये चीज है हम सबके लिए जो सुन रहे हैं ना, हम लोग बहुत मोटिवेटेड है थैंक यू सर, आपको थैंक यू सुन वेरी के, मच सर। और आपके जैसे हर एंटरप्रेन्योर को सुन के जिन्होंने अब तक प्रेजेंट किया और जो प्रेजेंट करने वाले हैं। तो क्विकली अपनी सेल्स की फिगर्स बताओ जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है, पहले वो बता के हम सबके होश उड़ा लो। सर जो पिछली बार मैंने बताई थी फिगर, वो एक्चुअल में मैंने 50 लाख बोले थे, 50 लाख सर वो एनुअली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना चाहूंगा मैं, क्योंकि पिछले टाइम मैं शादी में था, आपको पता भी है, वहां पे 50 लाख बोला और वो मैंने शायद मंथली बोल दिए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 50 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट है, दैट इज एनुअली। क्लियर है? हम इसमें 2 से 3 लाख पर मंथ हमारा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बात करें तो हम इसमें 10% के अराउंड हम इसमें बचा पा रहे हैं। 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ हमारे बचते हैं जी। और वो भी कब बच रहे हैं, जब अभी हम 10% बचा रहे हैं, क्योंकि हमने कॉस्ट अभी इसकी बहुत डाउन रखी है। जो मिक्सिंग का प्रोडक्ट आता है ना, दैट इज फॉर 2,000 रुपीज, और हमारा जो प्रोडक्ट जो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अभी हमने उसमें सिर्फ 2,500 रुपए रखे हैं। अगर उसका हम अगर कॉस्ट करना चाहें तो 3-3,500 तक का वो प्रोडक्ट इजिली है, लेकिन अभी हमने इसको कॉस्ट डाउन रखी है, सो दैट अभी तक हमारा नाम हो पाए इस मार्केट के अंदर। तो 50 लाख रुपीस की एनुअल सेल है आपकी? यस सर, एनुअल सेल है 50 लाख रुपीज की। That's a good number. That's a good number. No, I mean, I don't feel कि ये एक छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, अच्छा नंबर है। Over to other panelists. नितिका मैम आप बोलो। कृष्ण, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है एवरी टाइम आई लिसन टू यू। मुझे ना आप मेरे को एक चीज बताओ, जो जब आपने प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात की, राइट, तो प्रोटीन में क्या क्या सप्लीमेंट हम देते हैं एज फीड? एज ए फीड करंटली तो मैम जो अभी करंटली जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि वो पल्सेस वगैरह डालते हैं, और वो भी कब डालते हैं, जब उन्हें लगता है कि एनिमल्स की प्रेगनेंसी है, उस टाइम सिर्फ बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम पे वो उसको डालते हैं। लेकिन हमने इसमें क्या किया, जो करंटली मार्केट में कोडन सीड केक्स है मैम, उसके अंदर प्रोटीन का कुछ भी कंटेंट वो नहीं डालते हैं। क्लियर है मैम? तो अब हमने इसके अंदर पल्सेस और सिंगल सेल प्रोटीन का एक कंटेंट मैम, जैसे हमने बायोटेक में पढ़ा था, तो मैंने वो चीज ट्राई की जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरिया से और अपनी फंगस से हम सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं और उसको हम इंक्लूड करते हैं। करंटली हमने टोटली सिंगल सेल प्रोटीन नहीं डाला है ये, क्योंकि अभी तक हमने उस चीज का, क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, वो चीज अभी तक हमने एज ए लैबोरेटरी लेवल पे इतना वो फाइनलाइज नहीं हो पाई है, इसलिए हमने सिंगल सेल प्रोटीन के साथ साथ पल्सेस भी ऐड किए। ब्रेक लगाओ। इसमें इसमें क्या है, मुझे समझ में आ गया। मुझे इसमें आपको दो चीजें बोलनी थी जो आप एक्सप्लोर करना। इसमें क्या है कि जो अल्टरनेट इंग्रेडिएंट्स में फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है, उसके पाउडर को यूज करके कुछ चीजें बनाई जा रही हैं, और प्लस इंसेक्ट प्रोटीन, मीट एंड ऑयल्स को यूज करके भी प्रोटीन रिच फीड बनाई जा रही है फॉर एनिमल्स। ठीक है, ये भी एक सेगमेंट है जिसको आप थोड़ा सा स्टडी करना, इसको हम बाद में। फ्रूट का मैं थोड़ा सा ट्राई किया था हमने। हाँ। उसमें अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको एरियाज बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरा, आपको अपनी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रीजनेबल रेवेन्यू तक पहुंच चुके हो, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा और डिटेल ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है, ताकि कोई भी देख के, अगर आज मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे वो आंसर्स मिल जाए। ठीक है, वो आंसर्स ये है कि आपको इसमें मार्केट के बारे में बताना पड़ेगा कि क्या मार्केट है एनिमल फीड की। जितना मुझे पता है 35,000 करोड़ की मार्केट है ओनली विद द कैटल। ठीक है, हम पोल्ट्री और फिशिंग और इन सबको छोड़ दें, तो वो आपको इसमें ऐड करने की जरूरत है। आपको अपना विजन ऐड करने की जरूरत है कि आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या चैनल्स हैं वो यहाँ पे बताने की जरूरत है। ट्रैक्शन, जैसे विनीत सर ने बोला कि आपके नंबर्स हाईलाइट होने चाहिए बहुत क्लियरली। एक्सपैंड कैसे करने वाले हो, ठीक है, कुछ कॉम्पिटिटर्स के नाम, क्योंकि आप एक स्केल पे ऑलरेडी पहुंच गए हो, उसमें जो आपको हेल्प चाहिए, आपकी पूरी टीम है वहां पे हेल्प करने के लिए सेंटर में। ठीक है, मेरी तरफ से तो हेल्प चाहिए होगी, आई हेल्प यू, बट इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा और प्रोफेशनल बनाते हैं ताकि हम इसको आगे भेज सकें फॉर फंडिंग, और कोई ना कोई कोई अच्छे चैनल पार्टनरशिप के लिए, बिकॉज आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, other than that, all the best and great job, keep doing the great work. Thank you. Okay, Krishna. Aminder sir. No, thank you. I think Vineet and
Nitika has already covered जो points थे, पर one thing is for sure, 50 lakh annual revenue is not a small thing. You must put it. It's a very difficult thing to do. People out there आसान काम करते हैं कि they'll take up a job और अपना जो भी है 25, 30, 40 हजार रुपए बना रहे हैं और घर जा रहे हैं. So for you to generate 50 lakh new wealth is brilliant. तो वो presentation में आना ही चाहिए, properly आना चाहिए. And I'll tell you this, you should be very, very proud of your revenue right now. Doesn't matter how much you're saving and all, 10%, 15%, वो matter नहीं है. At least you're doing it. That means ये test हो चुका है and people are interested. So brilliant. Apart from what Nitika just mentioned, I think you are. I don't have anything else to add, but yeah, keep on the good work. It's very good. Thank you, sir. Thank you, Krishan. Thank you all the panelists. Now, एक मैम 2 मिनट में तुमसे मैं एक क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा जिसके लिए मैं तैयार था कि मेरा फ्यूचर का प्लानिंग क्या है. मेरा करंटली स्टार्टअप का नाम जो मेरा फर्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट मेरा होगा जी सेकंड चैलेंज, जिसमें हमने ब्लैक फंगस को ग्रो करने की ट्राई की और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HM उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मेरी सर से बात भी चल रही है उधर, और वहाँ पे एक ये ट्रायल चल रहा है जिसमें हम ब्लैक फंगस को एनिमल जो ह्यूमंस है उनके लिए लॉन्च करने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर. थैंक यू मैम. Thank you for sharing your future plans also with us, Krishan. Moving on to Karnal Home Tuitions. Vikas is joining from Sunan Sir's ID. Vikas, आप please अपने आप को एक बार unmute कर लीजिए. Done, ma'am. Great. So just give me a minute. I'm going to open your presentation. Sure. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to start your timer. Okay. And all the best to you. Thank you. Please start. Good afternoon to everyone. At your doorstep. इस एक वर्ड ने पूरी दुनिया को चेंज कर चुका है, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, और उसी चीज को हम थोड़ा फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं अपने हमारे कंसेप्ट पे, जिसका नाम है करनाल होम ट्यूशन. करनाल होम ट्यूशन, हम होम ट्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं टीचर्स को पेरेंट्स के या स्टूडेंट के घर भेजकर. हमारा जो कंसेप्ट है वो है गैप फिल करने का, जो कि एक स्टडीज में आ रहा है स्टूडेंट के, और जहां पे मैक्सिमम पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पा रही है. तो करनाल होम ट्यूशन उस गैप को फिल करने के लिए अपना कंसेप्ट लेके आ रहा है, ट्यूटर एट योर डोरस्टेप. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट मैम. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, यहाँ पर 4 सर्वाइवल है. पहला है पेरेंट्स, सेकंड है स्टूडेंट, थर्ड है टीचर्स, एंड फोर्थ है ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि आज बहुत वास्ट स्केल में, लार्ज स्केल में फैलता जा रहा है. पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए. स्कूल में अडेप्ट कर चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग नहीं है जितनी होनी चाहिए. बच्चे स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, एंड टीचर ऑल्सो, क्योंकि बहुत पुराने टीचर्स जुड़े हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन से. बहुत पुराने टीचर्स ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कभी सुना ही नहीं, उनके लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है. तो पहले पेरेंट्स प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंट्स को एक अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पाता उनके प्लेस पर, और उनको फाइंड आउट करना पड़ता है, उनको काफी समय व्यतीत करना पड़ता है ताकि उनको एक अच्छा ट्यूटर मिल पाए. सेकेंड प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट के साथ, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता. एक क्लास में 40 बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन टीचर उनको प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं दे पाता. तो हम उनके लिए एक स्पेशल टीचर सेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस ऑफ टाइम ऑल्सो, किस टाइम पे वो कन्वीनियंट है पढ़ने के लिए. सेकेंडली थिंग, किन सब्जेक्ट के ऊपर उनको फोकस करना है, और उसमें गाइडेंस भी मिलती है. थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही है वो टीचर्स की प्रॉब्लम आ रही है. एज यू नो कि कोविड की वजह से कितना ज्यादा एजुकेशन सिस्टम का नुकसान हुआ है. जब भी कोविड के केसेस बढ़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम शट डाउन हो जाता है. फिर या तो मीडियम चलता है ऑनलाइन या फिर होम ट्यूशंस. तो टीचर्स के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि उनका स्कूल से सैलरी खत्म हो चुकी थी,
प्रॉब्लम वहां पर बहुत बड़ी थी कि उनकी अब सैलरी नहीं आ रही है। सेकेंडली थिंग, उनके पास बच्चे जो थे, जहां पहले वो बैचेस में पढ़ा रहे थे, अब वो बैचेस में बच्चे नहीं आ पा रहे, तो उनको वहां पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड फेस करना पड़ रहा था। तो ये टीचर के लिए भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, जिससे कि बहुत अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, मोर देन 20 to 30,000 इन अ मंथ, वो इन होम ट्यूशन से ही कमा सकते हैं। फोर्थ, ऑनलाइन का कंसेप्ट, जैसे आप सबको पता है, बायजूस है, वेदांतु है, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब ऑनलाइन कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन क्या ऑनलाइन, हर एक बच्चा ऑनलाइन के लिए काबिल है? क्या उसके पास इंटरनेट है? क्या उसके पास अगर इंटरनेट भी है तो क्या वो उस चीज को इतनी अच्छी तरह ग्रैब कर पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस चीज का सोल्यूशन जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, करनाल होम ट्यूशन एक इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा अपने में यूनिक है, तो क्यों ना उसको एक यूनिक स्टडीज प्रोवाइड करी जाए। नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि हम एक पर्सनल ट्यूटरिंग दे रहे हैं बेटर एजुकेशन के लिए, एक अच्छा इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है बच्चे को, जिससे कि पेरेंट्स की भी सेटिस्फेक्शन होती है। पेरेंट्स को 1-on-1 इंटरेक्शन मिलता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन भी होती है, उसको फीडबैक मिल पाता है ट्यूटर से कि मेरा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, मेरे बच्चे ने आज क्या क्या करा, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि विद इन अ मंथ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मतलब 30 to 40% इंक्रीज हुआ है बच्चे की क्वालिफिकेशन, और हम अगर रिजल्ट की ओरिएंटेड बात करें उसमें 30 to 40 इंक्रीज हुआ है परसेंटेज उसके एजुकेशन के अंदर। एक अच्छा इनकम प्रोवाइड करता है करनाल होम ट्यूशन ट्यूटर्स के लिए, काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, जिससे कि बच्चा एक स्पेशल फील करता है। वहां पर बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मुझ पे थोपी जा रही है स्टडीज, उसको ये लगता है कि मेरे लिए कोई खड़ा है जो हमारे लिए बात कर पा रहा है। जैसे कि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये हमारी ग्राफ से हमने बताया है कि करनाल होम ट्यूशन किस तरीके से हमारा जो गैप है ट्यूटर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में, हम उसको फिल कर रहे हैं, जो कि आज मार्केट में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट, मार्केट साइज क्या है? 25 करोड़ से ज्यादा एस्टिमेटेड स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, 25 करोड़ से ज्यादा। और हमारा जो ट्यूशन का टारगेट है वो 10 मिलियन मींस 10 करोड़ के नियर अबाउट हमारा जो मार्केट साइज है, हम जिसे कैप्चर करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी आज की डेट में हम कैप्चर करने पड़े हैं। इट्स अ रफ आइडिया, इट्स नॉट लाइक प्रॉपर यही है, लेकिन एक रफ आइडिया है। मोर देन इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे जो ये डाटा शोज कर रहे हैं। तो 25 करोड़ जो है वो स्टूडेंट्स हैं, और 10 करोड़ जो हमारे एस्टिमेटेड जो होम ट्यूशन या ट्यूशन की सर्विसेज ले रहे हैं वो ये बच्चे हैं। विकास, सॉरी टू कम इन, आपका टाइम अप हो गया, तो आप प्लीज थोड़ा जल्दी रैप अप कर लीजिएगा। या श्योर। ओके, नेक्स्ट कम टू बिजनेस मॉडल। इसमें हमारी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हमें अप्रोच करेंगे जो भी पेरेंट्स हैं, एंड देन टू हम उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड करने के लिए सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा कि कोविड टाइम के बाद सबसे बड़ा जो सर्वाइवल हुआ है वो एक टीचर के लिए है। टीचर एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो चुकी है आज की डेट में। तो हमारा ये एक इनिशिएटिव भी है, हमारी सोसाइटी के लिए भी एक इनिशिएटिव है, हमारा सोसाइटी के लिए भी एक फर्ज है कि हम उस रिस्पेक्ट को दोबारा लेके आए। जो फ्यूचर मेकिंग है उसका ही फ्यूचर डार्क में जा रहा है, तो उसको लाइटेड करने के लिए हम ये एक स्टेप ले रहे हैं, करनाल होम ट्यूशंस। ये कुछ हमारी सर्विसेज है, होम ट्यूशन की सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज, एंड स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग योगा इंस्ट्रक्टर, कैलीग्राफी, आर्ट्स एंड म्यूजिक ऑल्सो। These are our competitors: Urban Pros, home tutor sites, and tutor hunts. And this is our team. This me, Vikas Kori, Pratibha, my wife, co-founder, and Mamta, co-founder, as my sister. Our ask is 50 lakh for 10% of equity if someone gives. So this is our plan. Thank you very much. ये 50 लाख 10% इक्विटी, तो ये शार्क टैंक वाली इंस्पिरेशन से सेंटेंस लग रहा है मुझे तो। सर कुछ तो कहीं से तो सीख रहे हैं सर, थोड़ा let me also now become one of them and ask you these questions, because I have also been working in the education industry for the last 10 years. So first step is कि बायजूस
सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, उन्होंने दे आर ओपनिंग देयर ट्यूशन सेंटर्स अक्रॉस yes, इंडिया. yes. In this year they are planning for. Yeah, they are opening. And second is where I see a challenge where you'll have to look at is number 1 teacher availability, number 2 teacher scheduling. अब आप एक देखो कि अगर लोकल एरिया में अगर किसी ने घर जाना है तो वो आसपास ही रहना चाहिए, ऐसा तो है नहीं 2 घंटा चल के आएगा कहीं से, है ना? बिल्कुल, So he has to be in the area. तो अब उस एरिया में अच्छे टीचर्स और अच्छे वो, तो it's a known problem in India that we have lack of good teachers. So वो होना is going to be one challenge. And secondly, अगर आपको अच्छा टीचर मिल गया तो एक दिन में तो X amount of class ही लगा सकता है. ऐसा तो है नहीं कि the teacher can from morning 6 o'clock to the night 10 o'clock को हर घंटा एक जगह, और you have to take travel time into the account and everything. So these are teach scheduling and teacher availability, I think, are the 2 things which I feel are going to be a challenge. Good. Yeah, these are the 2 big challenges I feel. I totally agree with you, Vineet sir. And one thing I would like, sorry, Maninder sir. कोई बात नहीं. सॉरी मनिंदर सर, आई एग्री विद योर पॉइंट. इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ अभी करनाल के अंदर ही 700 प्लस ट्यूटर्स वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ एक सिटी के अंदर, करनाल के अंदर. हम जब इसको पैन इंडिया के लिए, हमारा विजन है पैन इंडिया के लिए, जब हम इसको लेके जाएंगे तो हमारे वो टीचर्स का नंबर भी इंक्रीज होगा. सेकेंडली थिंग, हमारा कंसंट्रेशन यही है कि क्वालिटी ऑफ टीचर दी जाए, और वो होगा बाय चेकिंग द प्रोफाइल. हमारी एक टीम होगी जो कि हर एक प्रोफाइल से बात करेगी, मतलब हर एक टीचर से बात करेगी, उनकी प्रोफाइल को मैनेज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे पास लिस्टेड होंगे. और जैसे ही वो लिस्टिंग होगी उसके बाद ही जो पेरेंट्स है वो उसको गो थ्रू हो जाएगा प्रोफाइल को, और जैसा उसका प्रोसीजर है फिर उसको आगे बढ़ेगा, लाइक पेमेंट वगैरह और जो भी चीजें है वो उसको फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड पे जाएगा. तो हमारे पास पहले सॉर्ट आउट होगी सारी चीजें ताकि पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना आए. तो 700 टीचर्स जो आपने क्वालिफाई किए हैं, ये आपके पैरामीटर्स जो आपने सेट किए हैं उनके अंदर डिफाइन किए हैं और ये सब क्वालिफाई हुए हैं 700? हाँ, 700 हमारे पास जो ज्वाइनिंग है, हमारे साथ जितने ट्यूटर्स जुड़े हुए हमारे साथ 700 हैं. नहीं, जुड़े मतलब क्या? जुड़े मतलब उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ मैं 25 से 30,000 कराऊंगा, कि आपने वेरीफाई भी कर लिया है? सॉरी, आपने उनको वेरीफाई भी करवा लिया है? सर एक्चुअली हमारा जो प्रोसेस है अभी के टाइम पे, हमें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट आई, सो हम अपने जितना हमारा ग्रुप है हम उसमें पोस्ट करते हैं, फिर हमारे पास क्वेरीज आ जाती हैं कि हमारी बारी है, तो सबके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हुई पड़ी होती हैं. उसके बाद हम उनसे बात करते हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली और सेंड कर देते हैं. तो पहले ही हमारी डॉक्यूमेंटेशन डन है उनकी तरफ से. Okay, so you are basically, in one line if I have to say, you are an aggregator of tutors for at home extra classes for children. That's what you are. We provide the tutors. You are aggregator. You are an aggregator. Right? I'm also a teacher, sir. I understand the pain behind this. yeah. No, we all understand the pain. Correct. Okay, that's fine. I'm happy with the answer. Yeah. Thank you. Thanks. Thank you. Please. So sorry, what was the name? आपका नाम क्या है? Vikas Kohli. Vikas. Okay. Yeah, Vikas. So Vikas, first of all, your voice is not coming, ma'am. Ma'am, I think we lost you. We can't hear you, ma'am. Your voice is not coming, ma'am. Nitika ma'am, I believe you're not audible. So in interest of time, what I'll say is, Vikas, you're going good. आपको बस अपनी थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छी आई. It came through very nicely, and कुछ जो मैंने पॉइंट्स आपको अभी लास्ट वीक बताए थे, you know, the optimum utilization of all the tutors you have on board with you, उनके आवर्स को और उनके टाइम को जस्टिफाई करने की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके बिजनेस मॉडल को काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा. Also that kind of, you know, takes in Maninder's point that he just mentioned. दूसरे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एग्नोस्टिक सा नाम रखो अपने ब्रांड का. करनाल होम ट्यूशंस की जगह कुछ ऐसा जेनरिक सा नेम पिक करो, ब्रांड नेम एटलीस्ट पिक करो,
कि जो स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टॉप ना कर पाए, है ना। मतलब इट शुडंट बी लाइक कि अगर आप किसी और सिटी में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप कोई और नाम चूज करोगे, कोई और ब्रांड नेम चूज करोगे। ऑब्वियसली यू वांट टू स्केल द होल बिजनेस अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन ब्रांड नेम। तो उसी हिसाब से थोड़ा उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना। ठीक है, ये सर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मेरी पहले भी प्लानिंग थी, बस जस्ट कि अभी इनिशिएटिव स्टेज पे जैसे अगर हमें कुछ आगे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ लोकल एरियाज में वर्क कर रहे हैं, मेरा विजन पैन का है, बट अभी जिस हिसाब से हमें स्टेप मिल रहे हैं वी आर प्लानिंग ऑन द नेम ऑल्सो, क्योंकि मुझे पता है करनाल से स्ट्राइक माइंड में सिर्फ एक सिटी का आ जाता है, बट हाँ ये भी एक पॉइंट है कि जब ये पैन इंडिया जाएगा तो लोगों को करनाल इतना ज्यादा नोन नहीं है, तो इट्स विल बी कैची ऑल्सो, कैची भी है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने अभी इसको रखा हुआ है नाम को। वी विल डेफिनेटली चेंज। Sure. Thank you so much, Vikas, for your time. Smriti, can we move on to the last one? Yes, sir. Shall we wait for Nitika, ma'am? She was asking few questions, I think. No, I think we can move on to the last All one right. now. So the last one is Shah Rukh Khan, the Zero Restaurant. Shah Rukh, I am going to unmute you. You know, it feels very nice to say Shah Rukh, I'm going to unmute you. Shah Rukh Khan, are you with us? Can you hear us? आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो बेटा, मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रही हूँ। ओके। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, सो मैं आपका टाइमर लगा रही हूँ एंड ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, माय नेम इज शाहरुख, द फाउंडर ऑफ द जीरो रेस्टोरेंट. Currently we are serving more than 100 of drinks which are healthiest and delicious also, which are mocktails, shakes and smoothies. Next ma'am, next slide. As we all know, in such a pandemic time everyone is सबको एक प्रॉब्लम फेस हुई थी कि सबका इम्यूनिटी पावर्स थोड़ा स्लो है, एंड दैट्स ये क्यों था, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं हमारे पास में जो नाम के तो बहुत बड़े बड़े हैं और वो बातें ही बहुत बड़ी भी करते हैं, लेकिन जो चीजें वो सर्व कर रहे हैं, लाइक दे आर सर्विंग मोर प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उनमें से बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कैंसर तक होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी द जीरो रेस्टोरेंट, एज द नेम सजेस्ट वी आर सर्विंग we are preservative free and 100% natural beverages, and we make own syrups like other brands Monin and Malas. We are owning our own brand syrups. Next ma'am, next slide. जैसा कि आप सभी जानते हैं, there are only fewer companies, like less than 100 companies which are genuinely serving preservative free drinks, and if we talk about big brands like Caventer's or London Shakes, they are also serving their product with preservative to increase their shelf life. Next. If we talk about market size, it's about $1,337 billion in all over the world. If we talk about India, it is about $52.5 billion, and every year इसमें 5.5% की ग्रोथ देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली फार्मर से हम मंगाते हैं, उसके बाद हम उसको मेकिंग प्रोसेस में डालते हैं। लाइक और हमारी जो सिरप्स हैं वो 3 मंथ की मैचुरेशन में जाती है। देन उसके बाद हम अपनी सिरप्स के जो हमारा ड्रिंक्स है वो तैयार करते हैं, पैकिंग करते हैं, देन हम डायरेक्टली कस्टमर तक डिलीवर करते हैं वाया स्विगी, जोमेटो एंड ऑन डिलीवरी सर्विसेज। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो अभी B2C है, एंड हमें एक गुड मार्जिन यहाँ पे मिलता है 50%, और इसको हम अभी 80% तक लेके जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। So if we talk about our competitors, they are Caventer's, Frozen Bottle, London Shakes and many more. So how we are competing them? Because अगर हम उनकी बात करते हैं उनकी प्राइसिंग की, तो उनकी जो मिनिमम प्राइसिंग है वो
150 से स्टार्ट होती है और 350 तक जाती है, जबकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं प्रिजर्वेटिव फ्री हैं और हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, और इनकी जो प्राइसिंग वो सिंपली 99 से स्टार्ट है और 150 तक जाती है। एंड द मेन थिंग इज दैट कि हम इस मार्जिन को कैसे कम कर पा रहे हैं अपने। तो जो भी हम चीजें खरीद रहे हैं हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं जाते हैं, हम सीधा फार्मर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, लाइक इन तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, एटीसी। नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी टीम में शाहरुख खान, जो मैं हूँ फाउंडर, मैंने अपनी जो इंटर्नशिप है वो अशोका होटल से की थी, देन उसके बाद क्राउन प्लाजा, और मैं 4 मंथ्स अभी एक वेल नोन कंपनी में था जो है बेबली कॉकटेल कंपनी, जहां पर हम बहुत सारे इनोवेटिव थिंग्स करते थे। एंड सेकंड वन फाज अ फ्रेंड सबा, दे आर co-founders, they are a professional chefs, and we are also hire 3 interns for 1 for marketing and 2 for recipe development, and also we have a team of 15 interns which give us development things and new recipe inventions. Next slide, ma'am. Currently we are asking for 20 lakhs, 20% for marketing, which is 4 lakh, and 25% for product development, which is around 5 lakh, and 55% for a new outlet, that is 11 lakh. And currently we are also serving in Kota, Rajasthan as a physical branch. Next slide, ma'am. So how we are going to scale up, like we are going to open new outlets and new cloud kitchens, many more. Thank you so much. Thank you, Shahrukh. Thank I you, ma'am. request our panelists to kindly ask him few questions. शाहरुख, आपकी ट्रैक्शन क्या अभी, क्या रेवेन्यू? सर लास्ट मंथ हमने 1.25 lakhs का किया था, जो सिर्फ हमने ड्रिंक्स बेचकर किया था। Mainly we are also serving whey protein drinks also for gym lovers. करेक्ट, थैंक्स। और आपका अभी एक्सपेंशन प्लान क्या है? आप कैसे एक्सपैंड करोगे? मतलब इस 1.25 लाख के रेवेन्यू को आप 1 करोड़ का रेवेन्यू कैसे बनाओगे? क्या आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी? सर जैसे मैंने अभी आस्क किया आपसे कि हम एक आउटलेट के लिए भी पैसे यहाँ पर आस्क कर रहे हैं, देन आल्सो वी आर, हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे क्लाउड किचन्स ओपन करेंगे, कि हम अपना उनको रेसिपी बताएंगे, उनसे एनडीए साइन कराएंगे, देन छोटे छोटे आउटलेट्स खोल के हम चाहते हैं कि हम नॉट इन कोटा, इन फरीदाबाद और इन दिल्ली, हम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जाए, ताकि हम और एक्सपेंड कर पाए। और जैसा कि आपने बताया कि सर मैं 1.25 को 1 करोड़ कैसे करूंगा, तो सर क्लाउड किचन से हम मिनिमम खर्चा करके सर उस चीज को हम बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी जो सिरप से सर वो खुद ही बना रहे हैं, किसी परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। शाहरुख, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आउटलेट मॉडल पे क्यों जाना चाहते हैं? मैम हमें ये प्रॉब्लम फेस हुई थी कि लाइक हम पहले सिर्फ ऑनलाइन ही थे, लाइक इंस्टाग्राम और बाकी चीजों से हम ऑर्डर्स रिसीव करते थे, लेकिन हमें लोग जान नहीं पा रहे थे। जैसे कि हमारा यहाँ पर हमने आउटलेट डाला कोटा में, देन पीपल स्टार्ट टू नो अस कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बेचते हैं, हम दूसरों से अलग क्यों हैं, हम चीजें नेचुरल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे प्राइस रेंज में कर रहे हैं, और जहां तक कि हम जो मानना है हम उस प्राइस रेंज से भी काफी कम में दे रहे हैं, और आगे उससे भी कम में देंगे। हेलो Ma'am, I think we lost you again. So my comment, I think building. So आपने on to अपना what- केपेक्स वगैरह सब Go ahead, कुछ go सॉर्ट ahead. किया हुआ है माइंड में कि क्या खर्चा होगा, कैसे कैसे आप उसको मैनेज करोगे? यस मैम। हेलो, am I audible? यस Yeah, मैम। am I audible? Yes, Yes, now ma'am, you're yes. audible. No, Maninder, you can continue. Please go ahead if you have a follow-on question. Yeah. No. I was Yeah. just, So I was saying building on कि your question. उसमें जो कॉस्टिंग वगैरह है, जो मैम आवाज नहीं आ रही। जो केपेक्स वगैरह है वो आपने कंसिडर करके चल रहे हो आप? जी मैम, एवरीथिंग मैंने कैलकुलेट किया गया है कि एक क्लाउड किचन में कितना खर्चा होगा, एक आउटलेट में कितना खर्चा आएगा, एवरीथिंग मैम, यहाँ तक कि सप्लायर, मार्केटिंग, एवरीथिंग मैंने सब कॉस्टिंग जोड़ के रखा है मैम, हर चीज। अब अभी कोई आपका आउटलेट है? यस मैम, इन कोटा में है, जो एक फिजिकल वर्क कर रहा है, एंड देन सेकेंडली वी आर गोइंग टू लाइव इन ओखला, दिल्ली।
तो जो आपका अभी कोटा वाला है वो प्रॉफिटेबल है? यस मैम, प्रॉफिटेबल है अभी। ओके ओके, ठीक है शाहरुख, एंड बाय द वे आई लव योर शेफ कोट एंड ऑल द बेस्ट। एंड मैम आउट ओवर ड्रिंक्स। Sure, I'll try them soon. Thank you यस and all मैम, the best. ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you, ma'am. Maninder sir, I request you to ask few questions. No, I'm good. Nitika's asked is exactly same question, so it's fine. I'm fine. Thank you, sir. With this, Thank we you so come much. to an end of our competition. तो हम 5 मिनट ले लेते हैं, जजेस हमारे डिसाइड कर लेंगे who are the winners. But in the meanwhile, I'll request all the participants to clap for themselves. You know, this is a standard. मेरे को पता है, मैं हर सेशन से पहले सबको कहती हूँ, please clap for yourself and encourage yourself, because I believe it is not often that we say well done to ourselves. So अभी कोई अपने को unmute तो कर नहीं सकता, तो आप लोग please अपने reactions के icon को use करते हुए clap कर दीजिए. Because I also believe कि हम जहाँ सब कुछ share करते हैं, we should also share for ourselves. Great, thank you everyone. Thank you Shahrukh Khan, thank you Shikha, thank you Eco Organic, thank you Muktaka, Manjeet, everyone who's appreciating themselves and everyone else who participated in this competition. In the meanwhile, yes, sir, can I present my idea in 3 minutes rest time? Well, we can make it interactive. I don't know if sir is here because वो लोग तो decide कर रहे हैं, पर आप audience के साथ अपना idea share कर सकते हो क्योंकि हम wait कर रहे हैं. Thank you, Kapil. So I am going to unmute you. और आप बताइए आपका नाम क्या है, because 193222 से तो पता नहीं चल रहा. अब बताइए आपका नाम क्या है, कौन सी सिटी से है और अपना आइडिया जरूर शेयर करिए. Can I screen share? पहले आप मुझे आइडिया बताइए, उसके बाद देखते हैं स्क्रीन शेयर हम कर पाएंगे या नहीं. विकास कहाँ से हैं आप? स्क्रीन प्रिंटिंग हिसार. ओके, ग्रेट. सो आप पहले अपने आप को एक बार अनम्यूट करना विकास. हेलो मैम, माय नेम इज विकास. हाँ जी, आप अपना आइडिया शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ जब तक हम वेट कर रहे हैं. यस मैम, पीपीटी भी रेडी है मैम. कैन आई शेयर? ओके, गो अहेड. आप शेयर कर लीजिए बिकॉज़ वी आर एज इट इज वेटिंग, सो वी हैव सम टाइम. आप शेयर कर सकते हैं अपना आइडिया. सो दैट इज इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीन प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं. एंड ये मार्केट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय कंपनी नेम इज वेरावे. एंड फर्स्ट इज वी क्रिएट ड्रीम एंड एक्सपीरियंस. मतलब कि जब हम कोई सामान लेके आते हैं तो एक्सपीरियंस देखते हैं एक बार, चाहे उसके अंदर कुछ ना हो पर एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे हमें याद रहे. और उसके बाद हम इसमें प्रॉब्लम करें, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, सब कोई ले रहे हैं, पर लेकिन इसमें कंपटीशन भी हम दे सकते हैं. जैसे अगर इसका प्रोसेस बताऊं, हमें डिजाइन चाहिए जो कि हमारी ग्राफिकल टीम है, उसके बाद हमें ये चाहिए कि उसको कितने बजट के हिसाब से दे सकते हैं, प्लस इसमें प्रिंटिंग मेथड कौन से होंगे. और ये नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोसेस. ये प्रोसेस आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम वेस्ट ना करके आपको सीधा बता सकता हूँ. जैसे कि मैन वेयर, इन सब में हमारे पास इतने हैं. एंड नेक्स्ट इज वुमेन वेयर में भी बहुत सारे आते हैं. टी शर्ट, बॉयफ्रेंड टी शर्ट 3x4 स्लीव. एंड नेक्स्ट इज मार्केट साइड हमारा पूरा इंडिया में जितने भी लोग हैं सारे कपड़े पहनते हैं, तो हम उसी को मार्केट लेते हैं. और एक एवरेज फीमेल देखे तो 600 रुपए एक टी शर्ट पे खर्च कर सकती है. एंड मेल इज 800 तक जा सकता है फॉर प्रीमियम टी शर्ट्स. एंड नेक्स्ट इज मार्केट ग्रोथ, इसका दिन पर दिन बढ़ रहा है. एंड नेक्स्ट इज इसकी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है कि 5 से 17 से 30% है, पर लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं 18 से 35 वो हमारे 55% है, तो हमारा टारगेट 55% होगा. एंड नेक्स्ट इज हमारे टारगेट एरिया क्या रहेगा, जैसे कि ब्रांड के ऑनलाइन स्टोर होते हैं वो इतना है. एंड ऑफलाइन जैसे कि जो शॉप से लेते हैं, एंड जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये है, तो हमारा टारगेट रहेगा ब्रांड, ऑनलाइन स्टोर एंड ई कॉमर्स. नेक्स्ट इज तो हमारे सेलिंग प्लेटफॉर्म क्या रहेंगे, ये तो हमारे रहेंगे, ये सारे रहेंगे सिर्फ इसको बिल्ड करने के लिए. जैसे अमेजोन पे हम बेचेंगे तो उसके ऊपर ऐसी पैकिंग करेंगे कि अगर बंदा खोले तो उसके अंदर हमें ये कंपनी का नाम देखे तो एक बार जाके वो उस कंपनी में भी हमारी साइट पे भी देखे. दैट्स व्हाई हम दिस इज आर फॉर लॉस को बचने के लिए, एंड दिस इज आर गेन. एंड नेक्स्ट इज मार्केटिंग कैसे करेंगे. मीम पेजेस हो गया, कॉलेज पेजेस हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, पैकेजिंग हो गया, कस्टम प्रिंट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, पिक बैटल पेज होते हैं वो हो गया. एंड नेक्स्ट इज प्राइसिंग हम कैसे रखेंगे. रॉ मटेरियल, ये इसमें थोड़ा टाइम जा सकता है पर मैं सीधा बता सकता हूँ कि रॉ मटेरियल कॉस्ट
प्लस लेबलिंग कॉस्ट जैसे कि हमारे सीधा निकालने का है, और मैं आपको कहूँ कि एक सेकंड, अगर मैं आपको कहूँ 1035 रुपए की चीज मैं आपको 420 की बेच रहा हूँ, तो आप जरूर लोगे डिस्काउंट के साथ। और हमारा मिनिमम सेलिंग वैल्यू जो कहते हैं 345 प्रॉफिट के बाद, तो 345 है, बट लेकिन हम उसे मैक्सिमम प्राइस इतना रहेगा जो एमआरपी होता है वो ही है। एंड नेक्स्ट इज एंड दिस शॉर्ट एनालिसिस। एंड नेक्स्ट स्ट्रेंथ हमारी देखें मार्केट साइज, मार्केटिंग एंड यूनिक डिजाइन्स। एंड नेक्स्ट वीकनेस हमारी रहेगी इन्वेंट्री, क्योंकि अगर बाय चांस ऑर्डर आते तो एकदम से फुलफिल करना, एंड कंपटीशन है इसमें टाइम भी कंज्यूम जल्दी जल्दी देना। अपॉर्चुनिटी हमारे पास मार्केट डिजाइनिंग एंड मिडिल सेगमेंट एंड क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस। एंड सेकंड इज थ्रेड हमारे पास अनदर कंपनी जैसे बेवकूफ हो गया, अर्बन मंकी हो गया, रेड वुल्फ हो गया, सोल स्टोर हो गया। एंड सोर्सिंग, क्योंकि टी शर्ट की प्रीमियमनेस का सोर्स करना डिफिकल्ट है। एंड नेक्स्ट इज दिस इज माय विजन। एंड सेकंड इज 1 ईयर प्लान के हिसाब से करें, क्योंकि हम अभी स्टार्टअप करने वाले हैं। दैट इज स्टार्टअप फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल फॉर्मेलिटी, क्रिएटिव डिजाइन एंड सैंपल रेडिंग एंड ई कॉमर्स को लिस्ट करना फर्स्ट के 2 मंथ में। दैट्स एंड उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 मंथ में हम जैसे कि फर्स्ट ईयर 3rd मंथ में हम 30% तक जाएंगे हमारे जितना भी हमने लगाया। जैसे 7 मंथ तक हम ब्रेक इवन पॉइंट तक आ जाएंगे। एंड लास्ट फिर उसका री इन्वेस्टमेंट, मोर मार्केटिंग, रिजर्व करना एंड हायरिंग टीम। एंड उसके बाद मैं चाहता था जैसे कि 3 लाख मिलते तो हम स्टार्टिंग में मशीन, थोड़ी बहुत क्लोज, पैकेजिंग, गिफ्ट, ये सब। सो हमारी लास्ट ईयर 0-0, लास्ट मंथ 0-0। सो हमारी अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो मुझे 3 लाख की जरूरत पड़ेगी। एंड दैट इज माय ये। एंड थैंक यू। आप अपनी स्क्रीन क्लोज कर दीजिए प्लीज। एंड वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी को यूज करा, टू आस्क द राइट क्वेश्चन। when you took the opportunity, आपने you asked the question कि मैं अपनी presentation दिखा सकता हूँ, और आपने दिखाई। वेरी गुड। चैट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चंस भी आए हैं। राहुल जानना चाहते हैं, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। डिफरेंट इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें मार्केट साइज बड़ा है। तो जैसे कि कहते हैं ना, तालाब है, तालाब में 1 बाल्टी लो या 10 बाल्टी लो, पर तालाब में ले सकते हो आप। तो इसमें यह है कि मार्केट साइज पूरा इंडिया है, इंडिया में आप हर जगह पहुंच सकते हो, चाहे कितना भी मार्केट आ जाए इसमें कंपटीशन में। दैट वे, और यूनिक डिजाइन के साथ होना चाहिए। पर जैसे कहते हैं सब, जितनी बढ़िया बाल्टी, जितना बड़ा साइज की बाल्टी, उतना ज्यादा पानी आएगा। ग्रेट ग्रेट। विकास, मैं आपको ऑल्सो रिकमेंड करना चाहूंगी, आई एम श्योर आपको पता है हिसार इंक्यूबेशन। यस मैम, यस। सुबह सर से बात हुई थी, सर कहते कि वो सर के साथ हम अलग से कर सकते हैं ये। हाँ जी, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मंजीत सर से बात हुई थी। ग्रेट ग्रेट। सो शिखा का क्वेश्चन है, अगेन सेम, हाउ आर यू डिफरेंट एंड व्हाई विल पीपल बाय फ्रॉम यू? मैम डिजाइन के ऊपर निर्भर होता है। अगर मैं टी शर्ट पे ही लिख दूं माय लव, जैसे कोई वैलेंटाइन डे पे लव वाले टी शर्ट ज्यादा चलती है, जैसे कि लव लिख दिया और उसी को ये डिजाइन पसंद आया, मुझे ये पहनना है, अपने को गिफ्ट करना है, बॉयफ्रेंड को या किसी को गिफ्ट करना है, दैट्स व्हाई डिजाइन, क्योंकि वो है। Good, good. PU Edu says this man sounds like Harshad Mehta. Great. So I would recommend कि आप अपनी हिसार टीम से मिलिए. It's very nice कि you used this time productively. आपने अपनी presentation ready करी and you showed it to all of us. Great. Okay. Thank you, ma'am. Great. All the best to you. Great job, विकास। विकास नाम है ना आपका? Sorry, मैं मिस कर गया आपकी presentation. कोई नहीं सर, दोबारा शेयर कर देता हूं। थे। And नहीं कोई बात नहीं, आप दोबारा शेयर मत करो, but I just had a word with Maninder and Nitika both, and they were both telling कि यार ये लड़का बड़ा enterprising है. He's like a real entrepreneur who got his foot in the door. Opportunity मिली और आपने बस दरवाजे में पैर घुसा दिया कि हाँ मेरे को opportunity दो, अभी मेरे को बताना है. Even when you were not shortlisted, मुझे लगता भी नहीं कि आपने इससे पहले प्रेजेंट भी किया था डेमो पिचेस में। नो सर, मैं उस दिन एग्जाम था और कल भी एग्जाम है। राइट बट थैंक यू विकास, थोड़ा आपने हमें भी एनर्जाइज कर दिया अपनी एनर्जी के साथ। ठीक है, थैंक यू सर। राइट, एंड विद दैट गाइस द रिजल्ट इज रेडी विद अस। आज ना हम टॉप 3 की अनाउंसमेंट करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, ये नहीं हम करेंगे। एंड फॉर अस ऑल ऑफ यू आर विनर्स। जिन लोगों ने भी डेमो पिचेस में पार्टिसिपेट किया, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए आज के पिच सेशन के लिए, they are all the winners. Why? Because they chose to step forward.
they came forward keeping all their inhibitions aside. मतलब उन्होंने परवाह नहीं की कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे, क्या हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बोलेंगे. हम लोग इन inhibitions में, insecurities में बहुत रहते हैं. So I think we should applaud each of these people for that special effort of, you know, having the courage to come forward. And we should keep the spirit always in us that competition matters, position does not matter. I hope everyone agrees with me on this point. And with that, I'll ask our guest of honor today, Maninder, please unmute yourself and take a name. We have 3 names. You can take one name, Nitika can take another name, and I'll take the third name. But this does not say कि ये कौन सी position है, first, second या third. It just says that 3 of these people, according to us, were a little more sorted. They had, we thought their businesses are more scalable. They had a little more clarity of thought. थोड़ा और मतलब उनकी presentation में अच्छा throw था, pitch अच्छा किया उन्होंने. Here and there कोई मतलब minor से कुछ improvements हमें लगे, other than rest of the participants. So Maninder, with that, I think you can take one of the names. Okay, so if I have to take the first one or like one of the 3 names, then it would be Bharat Light. Lovely. Bharat Light, congratulations. Congratulations. You're amongst the top 3. Well, I should say the 3 who are selected today. Nitika, over to you now. Yeah. Congratulations first of all, Ram Prasad from Bharat Light, and I'll just take 10 seconds more and say कि please आप पांचों के पांचों were outstanding. Trust me on this. I keep listening to pitches, founders doing, मतलब वो बहुत high scale businesses में हैं, अपने series A, series B raise कर रहे हैं, कब से अपने आप को अपने businesses run कर रहे हैं. उनको भी कई बार इतना confidence के साथ pitch करते हुए मैंने नहीं सुना है जितने confidence के साथ आप पांचों ने pitch किया है. So you guys were outstanding. ये कोई competition नहीं है. It's just to let each other know that अभी journey शुरू हुई है and we'll keep motivating each other. और कुछ जो भी inputs आपको मिले हैं उस पे आप काम करोगे. Ultimately, your main success is you doing well with your startup. Okay. So कोई भी please ये मत feel करना you were less than anybody. If I have to take one name, then I'll take the name of Karvasra, sorry. Karvasra Trading Christian Company. from Karvasra. Yeah. Lovely. Congratulations, Karvasra Trading Company. Krishnan, बहुत congratulations आपको. आप last year भी पिछले startup summer school में भी आप top 3 में थे. I think you were on spot 2. इस बार हम position नहीं बोल रहे हैं कुछ भी यार, but being amongst the top 3, in fact that goes for Bharat Light as well. ये तो I think top हमारे picks ही हैं, because you guys are very sorted. बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. And the third name that I would like to take here is, guys, any guesses? Sorry, I don't want it to be like a reality show. You guessed it right. I think majority of you are saying Eco Organic India. So congratulations, Hemant. Eco Organic India is our third pick. Congratulations once again. And with that, I'd like to announce that though we did not mention earlier that there are going to be any prizes of any sorts, हमने कोई monetary, non-monetary prizes पहले नहीं बताए थे, because obviously I wanted you guys to participate. Instead of focusing on कि इसका outcome क्या होने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, तो हमने ये decide किया है कि तीनों जो top pick है हमारे आज के, हम उनको 5,000 rupees each cash prize देंगे, and that will be sent to your accounts very soon. And with that, I'd ask Maninder to please, tell us a few words, share a few comments about how your experience has been today, and any other feedback that you would want to give. That'll be our pleasure. And Nitika, you as well.
My experience has been amazing. Yeah, I mean, Vineet has been telling me for quite a while that I'm, about the startup stories that have been coming out of the incubators. But hearing firsthand, like what Nitika said, the confidence is something that I was really, amazed about. The level of confidence is very high, which means the foundation is right, because as an entrepreneur, if you are not confident, if you are not you're not backing your idea and we can't feel it, then it becomes very difficult. But all of you guys are very confident and you believe in yourself, and the whole idea is you're going for it. I mean, it's not easy to, forget revenues and all that. Just getting started also is a very difficult task. So I'm absolutely it was a pleasure being here, and I'm very, very happy that I was a part of this pitching session. Thank you so much, And guys. just to share that Maninder is also a part of our governing council at SSCC India. So Maninder, these comments coming from you means a lot to us, to each one of us. And we really hope that you join us soon in person. You come to meet these startups in person, physically, and just feel the energy, how these kids are doing it, taking these baby steps to create something sustainable and scalable for themselves. I think this is the real India in making. For sure, for sure. And then you know what? The best part was, and I was telling one of my team members who's just here sitting with me for a while, that none of them were basically, oh, we'll create an app and we'll do this. Yeah, yeah. All of them were addressing a problem of, as you said, the real India, right? Not just a product for metros. So which is brilliant. I mean, that's where the next line of entrepreneurs is going to come from. So quite happy. Thank you so much, Maninder. Nitika, I think, is not a co-host right now. Smriti, if you may please make her the co-host, and if she wants to add something. And guys, as we are concluding Idea Kriti today, I think this 4 weeks run had not been possible to be successfully done without the consistent efforts and tireless efforts put forth by our team. All the teams across all the centers. Thanks to all the center heads, including you, Smriti, Tanushri, for sparing extra time, Shikha for sparing all that extra time, all our outreach rock stars, Akash, Manjeet, and Muskan, all of you guys for putting in that extra great effort for making things happen. I'm sorry if I'm forgetting any names, but everyone did a fabulous job. Sunanji, Dharamveerji, all of you did a fabulous job. And I believe, because somebody was asking ki agla pitch session kab hoga, so guys, bahut jaldi hoga, and we're going to keep this consistent effort to brush up your skills. Dekho, obviously it takes a lot of courage to present yourselves, but we're going to make sure that these kind of activities keep happening very frequently. And with that, I'll come to Nitika. Nitika, I know you have to rush. You are going to go out now. You have an appointment. So please, if you want to give us any parting notes. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Yeah. Sorry, guys, I'm on the go. So yeah, as I already mentioned, I think it's just amazing to see the kind of, all of you bring all together. In spite of being from backgrounds, support the access nahi hai. And I think kudos to whole SSCC team for being there for these kids whenever it is needed, not just with respect to mentoring them, but also giving them a hope that things are good and things will take off. So I'm always, and ye main hamesha dil se bol rahi hu ki aap log bahut acha kaam kar rahe ho. Just keep doing the hard work, be persistent, and I'm sure aap mein se koi na koi kabhi na kabhi will become a big name in the industry, or we were part of their journey at some stage. So all the best, and thank you everyone at Team SSCC for having me. All the best, guys. Thank you so much, Nitika. And on a parting note, just to appreciate my team in public and on record, I'd say, Maninder especially, I think you should hear this, that in 2020,
the collective revenue done by all the startups across all the incubation centers was somewhere in the north of 75-80 lakh rupees. In 2021 calendar year, I'm talking about, the collective revenue was almost, I'd say threefold. It came out to be almost 2.5 crore rupees. 2 crore 30 lakhs something. Yeah, that was the collective revenue, which shows that, you know, our startups are putting in so much effort, and all our teams across all the centers are making sure that no stones are left to be unturned, and startups get all the support for scaling their journeys, and that's very empowering. Amazing. That's very good to hear. Really excited. All right. Thank you so much, everyone. Smriti, if you may want to conclude and say goodbye to everybody, I'll. Yes, sir. I would firstly, yes, sir. Thank you. I would like to thank all the panelists for their time to motivate our startups. And I would also like to congratulate the winners. Very, very well done. You know, all of us were guessing. Kaun jeetega, kaun jeetega. I was getting messages, WhatsApp, ma'am, whom do you think has won? So congratulations to everyone who's won. आप जितने participate करा था, congratulations to you. आप लोगों ने participate करा, इतना अच्छा pitch deck दिखाया. Thank you all the startups, panelists, everyone who's taken out time and made IdeaKriti a success. On this note, I'll be ending it. And जो लोग wait कर रहे हैं कि next competition कब होगा, we'll keep you updated very soon. And something really special coming for International Women's Day. Smriti, Yes, thanks to your great ideas that you pour all the times. We'll keep everyone posted on that. So something big coming for International Women's Day, and that'll be announced very soon. Right, sir. So let's all reconnect on the International Women's Day and celebrate womanhood. On that note, thank you everyone for the session. I hope you all had a great time. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye, everyone.